یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج روح القدس کی مدد سے روشنی ڈالنے جا رہے ہیں مسیح میں دھارمک جیون وشواشی کے طور پر ہم وشواس میں کیسے جیتے ہیں۔ مسیح میں وشواس دوارا دھارمک جیون کو سیکھنے کے لیے یا دھارمکتا کی پہچان کرنے کے لیے دو رشتے ہیں، اور جو ان دونوں رشتوں میں ہیں اور دونوں رشتوں کو بڑے نازک مزاج سے سمجھتے ہیں اور قدر کرتے ہیں، وہ بہت اچھے سے سمجھیں گے۔ تو اگر ہم موسیٰ کی شریعت کے ادھین رہ کر مسیح میں دھارمکتا جیون جینا چاہتے ہیں تو پھر موسیٰ کی شریعت کے ادھین ہمارا رشتہ گرو اور چیلے کا رشتہ ہے، اور وہ دھارمکتا باہری اور جسمانی دھارمک جیون کی شکشا پردان کرتی ہے، اور صرف گرو اور چیلے کے رشتے میں ہی۔ مگر اگر ہم مسیح یسوع پر وشواس لانے سے مسیح کی دھارمکتا میں مسیح دھارمک جیون جیتے ہیں تو اس میں پتا اور پتر کے رشتے کے دوارا دھارمک جیون کی اندرونی اور روحانی شکشا اور دھارمکتا کے جیون کی شکشا انوگرہ اور سچائی کے ادھین وارث کے طور پر، فرزند کے طور پر پتا کے دوارا پتر کے رشتے میں مسیح یسوع کے فضل اور سچائی کے دوارا اس کا پرکاش سچائی کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، سچائی کی روح سے، فضل کی روح اور سچائی کی روح سے۔ اب دو رشتوں کے ادھین موسیٰ کی شریعت یعنی واچا کے ادھین 10 حکموں کے ادھین دھارمکتا کو سیکھتے ہیں تو پھر گرو اور چیلے کے رشتے میں رہ کر سیکھنا ہوگا۔ اور جو لوگ سکول اور کالج سے سٹڈی کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، کمپلیٹ کر چکے ہیں، ہم سب جانتے ہی ہوں گے کہ سکول میں اور کالج میں سٹڈی کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ پہلے سکول پھر کالج میں ہمیں اپنی سٹڈی کو کمپلیٹ کر کے جس بھی فیلڈ میں اپنا فیوچر سیٹ کرنا ہے اس کے لیے پاس ہو کر اچھے مارکس لے کر آگے جاب یا کوئی بزنس کر سکتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی ٹیچر جسے وہ پڑھنے کے بعد پاس ہونے کے بعد ٹیچر سے پڑھنے کے بعد اور پاس ہونے کے بعد کالج سے اسکول سے اس کے بعد ہم اس ٹیچر کے وارث کے طور پر، فرزند کے طور پر، کوئی بھی ٹیچر چاہے وہ کتنا بھی اچھا اسٹوڈنٹ کیوں نہ ہو اپنا پتر نیوکت نہیں کر سکتا، کیونکہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا رشتہ ایک وقت تک اور ایک پاسنگ بیچ تک اور سٹڈی کمپلیٹ ہونے تک ہی رہتا ہے، اور ہمیشہ ٹیچر ہی رہتا ہے اور اسٹوڈنٹ ہی رہتا ہے۔ لکھا ہے کیونکہ اگر مسیح میں تمہارے استاد 10,000 بھی ہوتے، 10,000 10,000 تاہم تمہارے باپ بہت سے نہیں، اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے۔ مگر اگر ہم انوگرہ اور سچائی کے ادھین مسیح میں اور مسیح کے دھارمکتا کے جیون کو سیکھتے ہیں اور جیتے ہیں، انوگرہ اور سچائی کے ادھین پتا اور پتر کے رشتے میں سکھائے جاتے ہیں کہ آگے باپ کی ساری سمپتی کا وارث پتر ہی ہوگا۔ لکھا ہے اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، 10 حکم ایز اے دھارمکتا کے سلیبس کے طور پر، جیسے سکول کالج میں ایک بیچ کا ایک کلاس کا سلیبس آتا ہے ہر سال کا، ہر سمیسٹر کا، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی ایز اے پتر یعنی ایز اے سن کی ملکیت کی طور پر، وارث نامے کے طور پر
अब तय हमने करना है कि हमें स्टूडेंट रहकर मूसा की शरीयत के अधीन रहना है, पुराने अहदनामे के अधीन रहना है, पुराने अहदनामे के अधीन रहकर बाहरी जिस्म और जिस्मानी धार्मिकता में जीना है संसार के तौर पर, या कुछ वक्त के लिए, या फिर पुत्र यानी वारिस होने के लिए अनुग्रह और सच्चाई के अधीन रहकर धार्मिकता को पहनकर वारिस के तौर पर यानी पुत्र के तौर पर जीना है, हमेशा की जिंदगी के लिए, रूहानी जिंदगी के लिए, अनंत जीवन के लिए, और मसीह में और बाप में और रूहुल कुद्स में। ईमान के आने से पेशतर शरीयत की मताहती में हमारी निगाहबानी होती थी, और उस ईमान के आने तक जो जाहिर होने वाला था हम उसी के पाबंद रहे। बस शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बनी, ताकि हम ईमान के सबब रास्तबाज ठहरे यानी विश्वास के जरिए से धर्मी ठहरे। मगर जब ईमान आ चुका तो हम उस्ताद के मुताहत ना रहे, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीले से जो मसीह यस्सु में है खुदा के फर्जंद हो, बेटे हो। और क्योंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे की रूह हमारे दिलों में भेजी। बस जब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जो बेटा हुआ तो खुदा के सबब वारिस भी हुआ, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास। अब जब मूसा की शरीयत के अधीन उनके जो सिखाने वाले हैं, गाइडेंस देने वाले हैं, टीचिंग करने वाले हैं, वो हैं शरीयत के उस्ताद यानी रब्बी। मगर तुम रब्बी ना कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा उस्ताद एक ही है और तुम सब भाई हो। और जो अनुग्रह और सच्चाई के अधीन है उनका उस्ताद एक ही है यानी रूहुल कुद्स। लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वो ही तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। मूसा के शरीयत के अधीन उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते में यह लिखा है कि इब्राहिम के 2 बेटे थे, एक लौंडी से दूसरा आजाद से। मगर लौंडी का लड़का जिस्मानी तौर पर और आजाद का लड़का वादे के सबब से पैदा हुआ। इन बातों में तमसील पाई जाती है, इसलिए कि ये औरतें गोया 2 अहद हैं, एक कोहे सीना पर का यानी पुराना अहदनामा जिससे गुलाम ही पैदा होते हैं, और वो हाजिरा है। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर मेरे पास आ और वहीं ठहरा रहे, और मैं तुझे पत्थर की लोहें और शरीयत और अहकाम जो मैंने लिखे हैं दूंगा ताकि तू उनको सिखाए। जब खुदावंद कोहे सीना पर मूसा से बातें कर चुका तो उसने उसे शहादत की 2 लोहें दी। वो लोहे पत्थर की और खुदा के हाथ की लिखी हुई थी, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई। बस शरीयत क्या रही, वो नाफरमानियों के सबब से बाद में दी गई कि उस नस्ल के आने तक रहे जिससे वादा किया गया था, और वो फरिश्तों के वसीले से एक दरमियानी की मार्फत मुकर्रर की गई। बस ऐ पाक भाइयों, तुम जो आसमानी बुलावे में शरीक हो उस रसूल और सरदार काहिन यस्सु पर गौर करो, जिसका हम इकरार करते हैं, जो अपने मुकर्रर करने वाले के हक में दयानतदार था, जिस तरह कि मूसा उसके सारे घर में था, क्योंकि वो मूसा से इस कदर ज्यादा इज्जत के लायक समझा गया जिस कदर घर का बनाने वाला घर से ज्यादा इज्जतदार होता है। चुनांचे हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, मगर जिसने सब चीजें बनाई वो खुदा है। मूसा तो उसके सारे घर में खादिम की तरह दयानतदार रहा ताकि आइंदा बयान होने वाली बातों की गवाही दे, लेकिन मसीह बेटे की तरह उसके घर का मुख्तार है और उसका घर हम हैं, बशर्ते कि अपनी दिलेरी और उम्मीद का फकर आखिर तक मजबूती से कायम रखें। बस जिस तरह की रूहुल कुद्स फरमाता है,
अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जिस तरह की गुस्सा दिलाने के वक्त आजमाइश के दिन जंगल में किया था। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं, बल्कि हर एक जब कामिल हुआ तो अपना उस्ताद जैसा होगा। ये शरीयत के अधीन है कि शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं, बल्कि हर एक जब कामिल हुआ तो अपने उस्ताद जैसा होगा। शरीयत के अधीन कि फकीहों से खबरदार रहना, जो लंबे लंबे जामे पहनकर फिरने का शौक रखते हैं और बाजारों में सलाम और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियां और ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी पसंद करते हैं। वो बेवा औरतों के घरों को दबा बैठते हैं और दिखावे के लिए नमाज को तुल देते हैं। इन्हें ज्यादा सजा होगी। बस अगर तू यहूदी कहलाता और शरीयत पर तकिया और खुद पर फक्र करता है और उसकी मर्जी जानता और शरीयत की तालीम पाकर उम्दा उम्दा बातें पसंद करता है, और अगर तुझको इस बात पर भी भरोसा है कि मैं अंधों का रहनुमा और अंधेरे में पड़े हुओं के लिए रोशनी और नादानों का तरबियत करने वाला और बच्चों का उस्ताद हूं, और इल्म और हक का जो नमूना शरीयत में है वो मेरे पास है, बस तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को क्यों नहीं सिखाता? तू जो वाइस करता है कि चोरी ना करना, आप खुद क्यों चोरी करता है? तू जो कहता है कि जिना ना करना, आप खुद क्यों जिना करता है? तू जो बुतों से नफरत रखता है, आप खुद क्यों मंदिरों को लूटता है? तू जो शरीयत पर फक्र करता है, शरीयत के अदूल से खुदा की क्यों बेइज्जती करता है? हुक्म का मकसद यह है कि पाक दिल और नेक नियत और बेरिया ईमान से मोहब्बत पैदा हो। और हुक्म का मतलब एक हुक्म, 10 हुक्म नहीं, अकेला एक हुक्म। उसका जो मकसद था वो था कि पाक दिल और नेक नियत और बेरिया ईमान से मोहब्बत पैदा हो। इनको छोड़कर बाज शख्स बेहुदा बकवास की तरफ मुतवज्जी हो गए और शरीयत के मुआलिम बनना चाहते हैं, हालांकि जो बातें कहते हैं और जिनका यकीनी तौर से दावा करते हैं उनको समझते भी नहीं। ऐ मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं ज्यादा सजा पाएंगे। इस वास्ते वो कहता है कि जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवाय इसके कि वो जमीन के नीचे के इलाके में उतरा भी था, और ये उतरने वाला वही है जो सारे आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीजों को मामूर करे। और उसी ने बाज को रसूल, बाज को नबी, बाज को मुबाशिर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने, पाक लोग कामिल बने, रूहुल कुद्स की हिदायत से चलने वाले कामिल बने, और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजे तक ना पहुंच जाएं, ताकि हम आगे को बच्चे ना रहें और आदमियों की बाजीगरी और मक्कारी के सबब उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से मौजू की तरह उछलते बहते ना फिरें, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सिर है यानी मसीह के साथ पैवस्ता होकर हर तरह से बढ़ते जाएं। और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए, पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मौजे दिखाने वाले, फिर शिफा देने वाले, मददगार, मुंताजिम, तरह तरह की जबानें बोलने वाले। क्या सब रसूल हैं? क्या सब नबी हैं? क्या सब उस्ताद हैं? क्या सब नौज़ा दिखाने वाले हैं? मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और
कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद भी है। तालीम और इल्जाम और इस्लाह रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए कौन सी चीज फायदेमंद है? बाइबल में लिखा हुआ, कलाम में लिखा हुआ, अनुग्रह और सच्चाई के अधीन लिखा हुआ सहीफा यानी सफा, पेज, ताकि मर्दे खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। और तुम्हारा वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम में कायम रहता है, और तुम इसके मोहताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, बल्कि जिस तरह वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और सच्चा है और झूठा नहीं, और जिस तरह उसने तुम्हें सिखाया उसी तरह तुम उसमें कायम रहते हो। किसने सिखाया? हर एक सफे ने जो बाइबल में है, जो अनुग्रह और सच्चाई के अधीन लिखा गया, यानी मसीह यस्सु में। अनुग्रह और सच्चाई के अधीन पुत्र और पिता के रिश्ते में कलाम हक हमें गवाही देता है कि अगले जमाने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बा हिस्सा और तरह बा तरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस जमाने के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिससे उसने सारी चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीले से उसने आलम भी पैदा किए। वो उसके जलाल का परताव और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा और फरिश्तों से इसी कदर बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने मिरास में उनसे अफजल नाम पाया, क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ, और फिर ये कि मैं उसका बाप होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूं ये सच्चाई और अनुग्रह के अधीन है, वो भी करेगा, बल्कि इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वो ही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बच्चा है, अगरचे वो सबका मालिक है, मगर उसमें और गुलाम में फर्क नहीं, यानी कि जो शरीयत के अधीन उस्ताद है और उस बच्चे में कोई फर्क नहीं, बल्कि जो मियाद बाप ने मुकर्रर की उस वक्त तक सरप्रस्तों और मुख्तारों के इख्तियार में रहता है। इसी तरह हम भी जब बच्चे थे तो दुनियावी इब्तदाई बातों के पाबंद होकर गुलामी की हालत में रहे, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मताहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मताहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लपालक होने का दर्जा मिले। और चूंकि तुम बेटे हो, इसलिए खुदा ने अपने बेटे की रूह हमारे दिलों में भेजी, जो अब्बा यानी ए बाप कह कर पुकारती है। बस अब तू गुलाम नहीं, शरीयत के अधीन नहीं, उस्ताद के अधीन नहीं, बल्कि बेटा है। और जब बेटा हुआ तो खुदा के सबब वारिस भी हुआ, लेकिन उस वक्त खुदा से ना वाकिफ होकर तुम उन माबूदों की गुलामी में थे जो अपनी जात से खुदा नहीं, मगर अब जो तुमने खुदा को पहचाना, बल्कि खुदा ने तुमको पहचाना, तो उन जायफ और निकम्मी इब्तदाई बातों की तरफ किस तरह फिर रजू होते हो, जिनकी दोबारा गुलामी करनी चाहते हो। बस ऐ भाइयों, हम इसहाक की तरह वादे के फर्जंद हैं, और जैसे उस वक्त जिस्मानी पैदाइश वाला रूहानी पैदाइश वाले को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। मगर किताब मुकद्दस क्या कहती है, पुराना अहदनामा क्या कहता है? ये कि लौंडी और उसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि लौंडी का बेटा आजाद के बेटे के साथ अनुग्रह और सच्चाई के जो बेटे हैं वारिस ना होगा। बस ऐ भाइयों, हम लौंडी के फर्जंद नहीं, शरीयत के फर्जंद नहीं,
बल्कि आजाद के हैं, अनुग्रह और सच्चाई से हैं। जाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खादिमों के तौर पर लिखा, स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा की रूह से, पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि गोश्त की यानी दिल की तख्तियों पर। हम मसीह की मार्फत खुदा पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, ये नहीं कि बजायते खुद हम इस लायक हैं कि अपनी तरफ से कुछ ख्याल भी कर सकें, बल्कि हमारी लियाकत खुदा की तरफ से है, जिसने हमको नए अहद के खादिम होने के लिए भी किया, लफ्जों के खादिम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। और जब मौत का वो अहद जिसके हरूफ पत्थरों पर खोदे गए थे ऐसा जलाल वाला हुआ कि बनी इस्राएल मूसा के चेहरे पर उस जलाल के सबब से जो उसके चेहरे पर था गौर से नजर ना कर सके, हालांकि वो घटता जाता था, तो रूह का अहद तो जरूर ही जलाल वाला होगा, क्योंकि जब मुजरिम ठहराने वाला अहद जलाल वाला था तो रास्तबाजी यानी धार्मिकता का अहद तो जरूर ही जलाल वाला होगा। बल्कि इस सूरत में वो जलाल वाला इस बड़े ही जलाल के सबब से बेजलाल ठहरा, क्योंकि जब मिटने वाली चीज जलाल वाली थी तो बाकी रहने वाली चीज तो जरूर ही जलाल वाली होगी। बस हम ऐसी उम्मीद करके बड़ी दिलेरी से बोलते हैं और मूसा की तरह नहीं है जिसने अपने चेहरे पर निकाब डाली ताकि बनी इस्राएल उस मिटने वाली चीज के अंजाम को ना देख सकें, लेकिन उनके ख्यालात कासिफ हो गए, क्योंकि आज तक पुराने अहदनामे के पढ़ते वक्त उनके दिलों पर वही पर्दा पड़ा रहता है और वो मसीह में उठ जाता है, मगर आज तक जब कभी मूसा की किताब पढ़ी जाती है तो उनके दिल पर पर्दा पड़ा रहता है, लेकिन जब कभी उनका दिल खुदावंद की तरफ फिरेगा तो वो पर्दा उठ जाएगा। और वो खुदावंद रूह है और जहां कहीं खुदावंद की रूह है वहां आजादी है। मगर जब हम सबके बेनकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुआक्किस होता है जिस तरह आईने में, तो उस खुदावंद के वसीले से जो रूह है हम उसी जलाली सूरत में दर्जा ब दर्जा बदलते जाते हैं। इस सबब से मैं भी उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान खुदावंद यीशु पर है और सब मुकद्दसों पर जाहिर है हाल सुनकर तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता और अपनी दुआओं में तुम्हें याद किए करता हूं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफे की रूह बख्शे और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने की कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में पाक लोगों में कैसी कुछ है। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो और मसीह का इत्मीनान और मसीह की शांति, रूह, सच्चाई, फजल आपके दिलों में मसीह यीशु में ठहरा रहे।